Hello. Morning, students. Yesterday on Telegram app, a homework is given. I think you performing in your notebooks. So first we discuss today, yesterday homework. So please raise your hands. How many students do your homework? How many students do your homework? 5 questions given by me on Telegram app. So I think you do. If you not do, please concentrate on the board. If you have any doubt in any question, so first we revise the all 5 questions right now. Abhishek Gargi, Rakesh Budania and Tanisha, why you not done? So okay, no problem. If you not have any Telegram app in your mobile phone, so please install Telegram app. Always a homework given by the school, so you done. After that, next day we discuss all the questions. Okay, so now we discuss yesterday homework first. After that, we discuss further chapter. Okay, so first we discuss question number 1. Question number 1 in yesterday homework is find the value of the polynomial. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3. This question is given 5x minus 4x square plus 3. किस पे निकालनी है? At x is equal to 2 and x is equal to minus 1. This is your question. I think you do in a proper method. Now right now check your method and your answer. If you have any doubt, only put the values. If we take x is equal to, so put the values 5 2 minus 4 2 square plus 3. Okay, now 5 to the 10, 4 into 4 plus 3, 10 minus 16 plus 3. जब इसको माइनस करेंगे minus 6 plus 3, answer is minus 3. Okay, how many students get this answer in your? Okay, now similarly we put x is equal to minus 1. I think you do in a easy method. Now we discuss question number 2, factorize. We discuss question number 2, factorize. Homework question number 2, factorize. क्वेश्चन था 25y स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर. 25y स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर. जब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा होगा, आपके दिमाग में आना चाहिए था कि 5y स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको मैं लिख सकता हूं 6x स्क्वायर. अब ये कौन सी आइडेंटिटी है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो आइडेंटिटी क्या हुई हमारी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b and a minus b. So now we can write 5y plus 6x, 5y minus 6x. How many students got this answer? Raise your hands. कितने बच्चों का आंसर करेक्ट है? अगर आप लोगों ये क्वेश्चन करते हो और आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, इट मींस चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ चुका है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 second part, x cube minus plus 9x square plus 27x plus 27. ये क्वेश्चन है. इसमें क्या था? यहाँ पे देखो क्यूब आया है और यहाँ पे a स्क्वायर ये और ये पूरा. तो इसको मैंने कहा था कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इसको लिख सकता हूँ 9x स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ मैं 27x और इसको लिख सकता हूँ 3 क्यूब. लिख सकता हूँ क्या? अब देखो ये क्या है? a क्यूब और ये क्या है? b क्यूब. सो आंसर हमारा क्या आएगा? x plus 3 का होल क्यूब. हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट दिस आंसर? रेज योर हैंड्स. प्लीज do hard work in your home. Many students, Gargi Seni, Himani Kumari and Himanshi, what happened beta?
Now I think you clear. Some other questions will be given by on Telegram app by school, so please solve day by day. If you have any doubt, then explaining on the next day before starting the class in starting 10 minutes in the class. So do everyone and each and everyone question in your home. Expand question number 3 जो given था वो था आपका expand करना था 2x plus 5y का होल क्यूब. आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है. 5p minus 3q क्यूब सभी बच्चों ने किया होगा. a क्यूब प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब a माइनस b का होल क्यूब. ऑलरेडी मैंने आइडेंटिटी आप लोगों को बताई हुई है. यहाँ पर सिंपल आइडेंटिटी आपको यूज करनी थी. इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना था, a प्लस b का होल क्यूब और a माइनस b का होल क्यूब. रेज योर हैंड्स अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो. मैंने आप लोगों को इसका एक जनरल आइडिया दे दिया है. इसका क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब लगा देना यहाँ पे और यहाँ पे लगा लेना आप फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब. a की जगह 2x है और b की जगह क्या है 5y है. कर लोगे सभी? रेज योर हैंड्स. वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द रिमाइंडर when y cube plus y square minus 2y plus 5 is divided by y minus 5. बहुत इजी क्वेश्चन था. रिमाइंडर निकालना है ओनली. y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हो. y माइनस 5 दिया है तो क्या करोगे, y की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 5 आ गया. तो यहाँ पे पुट कर दो 5 और आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा. 5 का क्यूब 5 स्क्वायर माइनस 2 5 प्लस 5 125 25 10 प्लस 5. सोल्व करेंगे वी कैन गेट द आंसर. अंडरस्टैंड? रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज का यूज करके इसको फैक्टराइज करना है. क्या क्वेश्चन था, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर. अब देखो ये बन सकता है a स्क्वायर, ठीक है, ये बन सकता है 2 3x इंटू वाई और ये बन सकता है b स्क्वायर. तो देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है 3x प्लस y का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी बन रही है. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट दिस आंसर? रेज योर हैंड्स. आई थिंक ये बहुत इजी था. आपने 8th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं. लास्ट वन जो था आपका बी पार्ट 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. इसके अंदर भी वही है 2y का स्क्वायर, ये बन रहा है आपका 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. ये बन गया आपका माइनस 2ab आ गया है तो 2y माइनस 1 का स्क्वायर. ओके, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चंस yesterday. Now we discuss next questions of exercise 2.5. Now we discuss exercise 2.5. Yesterday we discussed a question on last time end of the class. How many students understand that question? Raise your hands. Question number 13. Question number 13. How many students understand? Raise your hands. Now those students raise your hands who not understand. Question number 13. Not understand. Okay, no problem. Right now we discuss again. Question number 13 have two methods. Yesterday we discussed two methods. So again we discuss right now x plus y plus z is equal to 0. हमें क्या प्रूव करना है कि x क्यूब प्लस y क्यूब z इज इक्वल टू है 3xyz. ये हमें प्रूव करना है कि x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z इज इक्वल टू 3xyz. ये हमें प्रूव करना है. So
कल जो मैंने मेथड बताया था, जो सेकंड वाला मेथड मैंने आपको करने के लिए दिया था, वो अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। उसके लिए आप लोग एक आइडेंटिटी को पता है आप लोगों को, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आइडेंटिटी आप लोग जानते हो क्या होती है। x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता है। अब देखो इधर क्या है, एलएचएस में ये चल रहा है हमारा माइनस 3xyz। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूं इस जगह पर, तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा या नहीं आएगा। तो आपकी जो RHS है वो 0 हो गई है। अब हमें ये प्रूव करना था, इस 3xyz को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या हमारा प्रूफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यस और नो। तो यही तो चीज हमें प्रूव करनी थी। रेज योर हैंड्स राइट नाउ इफ यू अंडरस्टैंड। अगर आपको अब समझ में आ गया तो रेज योर हैंड्स। ओके, नाउ ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड। लिसन अगेन, ये हमें प्रूव करना है तो ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कल जो मैंने मेथड बताया था वो इसलिए बताया था कि अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो। ओके, नाउ क्लियर। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप लोग ये चाहते हो कि कल वाला मेथड रिपीट किया जाए तो रेज योर हैंड्स। कल जो मैंने मेथड बताया था क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, अगर हाउ मेनी स्टूडेंट वांट टू रिपीटेशन अगेन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 अनदर मेथड। Few students want to the another method of question number 13. Okay, no problem. Please check another method. जो दूसरा मेथड जो था आपका, आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3, ये हमें प्रूव करना है कि हमें ये दिखाना है। मान लो जो मैंने आज बताया उसकी आइडेंटिटी आप लोगों को याद नहीं है तो आप क्या करोगे, यहां से मैंने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू लिख दिया माइनस जेड। इस जगह से लिख सकता हूं, जेड को ट्रांसफर कर दिया। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लो, क्यूब ले लो। क्या ले लो, क्यूब। तो इधर आ गया x प्लस वाई का होल क्यूब और इधर आ गया माइनस जेड का क्यूब। समझ गए। नाउ जब इसका क्यूब ओपन करेंगे तो a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab, सॉरी 3ab होता है, यानी 3ab की जगह क्या है एक्स वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। यहां पे मैंने लगा दी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी। अब देखो x प्लस वाई क्या है, माइनस जेड आया था हमारा, तो वहां पे मैंने पुट कर दिया माइनस जेड, तो इधर हो गया माइनस जेड का क्यूब। जब इसको मैंने सोल्व किया तो ये आया मेरे पास माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब इस जेड के क्यूब को तो इधर ले आता हूं और 3xyz को उधर ले जाता हूं, तो हमारा जो प्रूव करने वाला था वो टर्म बन जाएगी, पूरा एक्सप्रेशन वही बन जाएगा। ये देखो, यस और नो। अब बताओ आगे समझ में सभी को। मैंने 2 और 3 टाइम्स इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, दोनों मेथड से कर चुका हूं। आई थिंक अब शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डाउट्स में बता सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, without actually calculating the cube, find the value of each of the following। बिना क्यूब कैलकुलेट किए इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी। पहला पार्ट आपको गिवन है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। देखो आपको बोला है कि इस क्वेश्चन को बिना क्यूब के कैलकुलेट किए सोल्व करो। तब हम कैसे करेंगे, देखो अभी हमने एक जो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ा था उसमें पढ़ा है कि x क्यूब
वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अभी हमने इसको प्रूव किया है, ये चीज किया है ना। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू होता है 3xyz के। तो एक्स क्यूब की जगह क्या आ गया 12 माइनस 12, वाई की जगह 7 और जेड की जगह पर क्या आ गया, रिप्लेस हो गया 5। सो आई कैन राइट दिस आइडेंटिटी फॉर दिस क्वेश्चन। On the place of x we use minus 12, on the place of y we use 7, on the place of z we use y. Now you can do this multiplication easily. So we can get 12 3 are 16, 7 5 are 35, 12 3 are 36 and 35, 12 60 minus 1 to 60. This is your answer. Raise your hands if you understand. अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में आइडेंटिटी यूज करी थी वही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि जब 3 वैल्यूज का क्यूब होता है, रेडिशन होता है, तो जो उसका क्यूब बिना क्यूब की अगर हम उसका आंसर निकालते हैं तो वो होता है 3xyz। क्या होता है 3xyz। क्लियर है। नाउ यू डू पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2 इन योर रफ नोटबुक राइट नाउ फास्टली। डू एवरीवन। पार्ट बी गिवन है 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब। सोल्व फास्ट। सो अगेन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं 3xyz डायरेक्टली जब हमें इसे सोल्व करना हो। 28 क्यूब की मैंने y की जगह माइनस का 15 क्यूब है और z की जगह माइनस का 13 क्यूब है। यहां वैल्यूज पुट करेंगे, x के प्लेस पर 28 आया है, y के प्लेस पर 15 माइनस 15 और माइनस 30। अब देखो दो माइनस आए हैं तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल दो। शायद इसका आंसर 20 15 3 13 जा 195, 195 28 6 जा maybe 16380. This is your answer, I think. Raise your hands if your answer is correct. Okay. I think सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. Give possible expression for the length and the breadth of each of the following rectangle in which their areas are given. आप लोगों को पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं। आपको एरिया गिवन है, एरिया क्या है गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ये क्वेश्चन है, आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने लेंथ और ब्रेड्थ के, और ये आपको एरिया ऑलरेडी गिवन है। You know the formula of area of rectangle, everyone know, सभी जानते हैं आप। तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखो इसके अंदर हमें क्या दिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, यही गिवन है। सो नाउ फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करो स्टूडेंट्स। हाउ वी कैन फैक्टराइज, हमें पता है कि कैसे करते हैं। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 25 12 से कितना हो गया आपका 300 a स्क्वायर हो गया ना। अब इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपका क्या आ जाए 300 आ जाए, और ऐड या माइनस करें तो कितना आ जाए माइनस का 35 आ जाए। तो हम कैसे करेंगे इसे 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a। देखो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 35 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 300a स्क्वायर आ जाएगा। यहां से हमने कॉमन लिया 5a हमें कॉमन मिला तो क्या आया 5a माइनस 4। अगेन यहां से मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेने पे आया
5a माइनस 4। सो क्या हुआ, 5a माइनस 4 अगेन कॉमन है और 5a माइनस 3। इधर क्या था हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही था। देखो इसको मैंने फैक्टराइज किया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर 300 आता है, सबको पता है। अब इस वैल्यू को हमें 35 इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड या माइनस करने पर 35 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 300 आ जाए। सो हम क्या करेंगे, इसको -20 और -15 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ कॉमन 5a कॉमन आया था तो 5a माइनस 4 आ गया, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है माइनस का, तो 5a माइनस 4 आ गया। अब फिर कॉमन था 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। ओके, नाउ अब देखो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी होगी आपकी, 5a माइनस 4 होगी पॉसिबल जो है, और ब्रेड्थ कितनी होगी, 5a माइनस 3 होगी। ये आपका आंसर हो गया। देखो ये लेंथ ये हो गई, ब्रेड्थ ये हो गई। रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, again area is given, area is equal to 35y square plus 13y minus 12। सिमिलर क्वेश्चन, एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हमें ऑलरेडी इसका एरिया गिवन है 13y माइनस 12। फैक्टराइज करेंगे इसका लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए, तो 420 जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 420y स्क्वायर। इसको ब्रेक करना है माइनस का 420, तो इसको ब्रेक करो। अब तो इसको किस में ब्रेक कर सकते हो आप, आपको लाना है 420y स्क्वायर, आई थिंक 28 minus 15, so I can break this 28y minus 15y minus 12. Now you can take the common here, 7y is common, so 5y plus 4, again minus 3 common, so 5y plus 4, so again common is 5y plus 4, 7y minus 3। लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ क्या होगी आपकी 5y प्लस 4 और ब्रेड क्या होगी स्टूडेंट्स 7y माइनस 3। रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टैंड, फास्टली रेज योर हैंड्स। ओके, again repeat, this one is area given of rectangle, so formula is L into B, and break it means factorize this value, so we factorize, so we want minus 420 after the multiplication and adding and subtraction we get 13y, so break into 28y minus 15y. Now I take the common here and I take common here. Now after the common I get 5y plus 4 again common and 7 minus 3. So length is equal to 5y plus 4 and breadth is equal to 7y minus 3. Okay, now we discuss question number 16. And the last question of this chapter and this exercise. Last question of chapter number 2 and exercise 2.5. After that we discuss chapter number 3. If we remaining time, so we discuss today, otherwise we discuss on tomorrow's class. Now, question number 16. What are the possible expression for the dimension of the cuboid whose volume are given below? Possible dimension of cuboid. Cuboid की क्या possible dimension होगी? देखो इसे, आपको वॉल्यूम गिवन है फर्स्ट में, किसका, क्यूबॉइड का, 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब
आप लोगों को शायद वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा क्यूबॉइड का, पता है? रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट नो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? रेज योर हैंड फास्टली। दीक्षा, लांबा, शुभम, मुस्कान, प्रियांश, अभिषेक, प्रतीक, गार्गी, बिंदु, इमानी। नो द फॉर्मूला, गौरज गुज्जर। ओके, इफ यू नो, डोंट नो, सो प्लीज कंसंट्रेट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, इट्स ए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये तो हुआ आपका फॉर्मूला। अब इस वैल्यू को आपको क्या लेना है? इसका फैक्टराइज करना है। क्या करना है? इसका फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करोगे इसका? देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है ना, तो x -4 रिमेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे सर दो ही फैक्टर हुए हैं। नहीं, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई x -4 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बात तो वही है। तो इसका मतलब लेंथ कितनी हो गई? 3, ब्रेड्थ कितनी हो गई? x, और हाइट कितनी हो गई? x -4। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? रेज योर हैंड्स। समझ में आ गया है तो फास्टली अपने हाथ ऊपर करो फटाफट। रेज योर हैंड्स। Salini, you have any problem? I think that's why not raise your hands. Okay, again repeat right now. What is the given in this question? Volume of cuboid. Volume of cuboid given in this question. So volume of cuboid is length into breadth into height. ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। So 3x हमने यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? x -4। अब एक तो लेंथ होनी चाहिए, एक ब्रेड्थ होनी चाहिए और एक हाइट। आप बोलोगे सर इस पूरे को एक मान लूंगा और इसको पूरे को एक मान लूंगा, तो ये तो लेंथ और ब्रेड्थ थी हुई, हाइट कहाँ से लाऊंगा? तो देखो मैंने इसको क्या किया, इस 3 को बाहर फैक्टर और कर दिया, 3 इंटू x -4, तीनों को अलग अलग टर्म्स में लिख दिया। नाउ लेंथ इज इक्वल टू 3, ब्रेड्थ इज इक्वल टू x एंड हाइट इज इक्वल टू x -4। अंडरस्टैंड राइट नाउ? रेज योर हैंड्स फास्टली। Now question number 16 part second. Given a volume of cuboid, do in your rough notebook fastly students. After that you check your answer on the boards. 12 ky square plus 8 ky minus 20 k. देखो इसको वॉल्यूम को क्या ले सकता हूं मैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहां पर पहले फैक्टराइज करना है। देखो सभी में से क्या कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखोगे तो आपको 4k कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 4k। तो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। पहला काम मैंने क्या किया, इन सब में से ऑल 3 टर्म में से मेरे को 4 कॉमन मिल रहा था, 4k कॉमन मिल रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैंने 4k कॉमन लिया, मेरे पास क्या आया ब्रैकेट में? 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब 4k को तो मैंने बाहर रख लिया, इसको मैंने फैक्टराइज किया, जो अपन करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई 15 की टर्म में ब्रेक करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। इसको मैंने ब्रेक किया। नाउ 4k y कॉमन लिया, लेने पे मेरे पास आया 3y प्लस 5। यहाँ पे कॉमन लिया मैंने 1 माइनस 1, सो आया 3y प्लस 5। ओके, नाउ अगेन कॉमन इज 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, और यहाँ पे जब कॉमन लिया तो मेरे पास आया y माइनस 1। तो अब देखो मेरे पास 3 टर्म बन गई है। l इंटू
इंटू एच, तो एल हो गया हमारा 4k, ब्रेथ हो गई 3y प्लस 5, हाइट हो गई y माइनस 1. Understand? Raise your hands. If you understand, raise your hand fastly. Again, one time we repeat again this question. Length into breadth into height volume of cuboid होता है. यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने इस क्वेश्चन को चेक किया तो मेरे को कॉमन मिला 4k, तो मैंने 4k कॉमन ले लिया पहले. उसके बाद यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस 5y सॉरी प्लस 2y और माइनस 5 बच गया. अब इसका भी हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, तो 5y माइनस 3y हुआ. जो अपन करते हैं फैक्टराइजेशन वैसे ही फिर कॉमन लेने पर मेरे पास आया 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1. तो 3 पार्ट बन गए मेरे पास फैक्टराइजेशन के, 4k लेंथ, इट्स ए ब्रेथ एंड इट्स ए हाइट. ओके, नाउ your chapter number 2 polynomial complete today and your exercise 2.5 also. Now we start chapter number 3. Some discussion right now has some time, so that's why we discuss coordinate geometry. Coordinate geometry right now we discuss. Chapter 3 coordinate geometry, only just short discussion right now. We start this chapter tomorrow. So now is a short discussion on coordinate geometry. Chapter 3 coordinate geometry. Only short discussion. We discuss again on tomorrow. So now only coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री यानी जो अपन ड्राइंग वगैरह ज्योमेट्री बनाते हैं एक तरीके से. और कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि देखो ग्राफ होता है, ग्राफ होता है ना. आज थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद कल स्टार्ट करूंगा वापस से. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा ही होता है ग्राफ. हम इसी 4 पार्टीशन में बांटते हैं. देखो ये जो होता है ये होता है क्वाड्रेंट. 4 पार्ट में बांट दिया गया इसको. तो ये जो पार्ट होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो गए. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. अब देखो यहां होता है जीरो. क्या होता है? जीरो. क्या होता है? जीरो ओरिजिन पे. अब देखो इधर होता है, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना वो होती है एक्स एक्सिस, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस. इस साइड में जो राइट साइड में होता है वो तो होती है पॉजिटिव वैल्यू एक्स की, ठीक है, और लेफ्ट साइड में होती है नेगेटिव, ठीक है. यहां ऊपर यानी कि अपर साइड में वाई होता है, जिसकी ऊपर तो होती है पॉजिटिव और नीचे की तरफ होती है नेगेटिव वाई. क्लियर है ये चीज? अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों प्लस के, यानी एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का. यहाँ पे क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, x माइनस का y प्लस का. देखो x की वैल्यू क्या है, माइनस की, और y की वैल्यू क्या है, प्लस की. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही माइनस के हो जाते हैं, x भी और y भी. फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो y तो माइनस का है और x क्या है, प्लस का. अब एक और चीज बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है. अगर हम जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले जो आता है वो x होता है, दूसरा जो आता है y होता है. पहले जो आता है वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, और जो बाद में लिखा जाता है वो होता है y. x को हम बोलते हैं एब्सिसा, ये नेम याद रख लेना, एब्सिसा. x इज नॉन एज एब्सिसा, y इज नॉन एज ऑर्डिनेट्स. ऑर्डिनेट्स. x is known as abscissa and y is known as ordinates. ओके, ये जो बताया है आप लोग इसको ध्यान में रखना. x को जानते हैं हम एब्सिसा के नाम से और y को जानते हैं हम ऑर्डिनेट्स के नाम से. और जो इसके बारे में जितने भी चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, वो कल हम डिस्कस करेंगे. नाउ यू रिपीट अगेन. अभी मैंने शॉर्ट डिस्कशन किया आपके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2. 3.1 is only have I think 2 questions. After that we discuss exercise 3.2. So it's a very easy chapter for you. So concentrate on that chapter right now. Thank you very much. Have a nice day and do your homework in your home for today's homework.